Hey everyone, Namaste and welcome to another Chumeshwari problem solving session at Master DSC. So today what we're gonna do? We're gonna solve another problem from Coder's Army sheet. So now what problem says? So bro, there will be an 2D matrix, means 2D array, and you have to search for a target element within that 2D matrix. Simple question I think बहुत ही ज़्यादा simple है. Okay, नहीं आया समझ में? ठीक है यार एग्जाम्पल देख लो. No issue. Example number one. What does it says? What does it says? Okay. So this will be the 2D matrix. Okay. 1, 3, 5, 4 ऐसा in this form, right? And you have to search for the target element 3 in this 2D array, 2D matrix. Okay. So क्या करोगे? Linear search आती है? आती है? ठीक है. 2D array के बारे में कुछ पता है? नहीं पता. थोड़ा सा पढ़ो then. Okay. So 2D array are those array which has rows. Rows, what are called rows? 1, 3, 4, 5. This is one row. This is another row. This is another row. So it has 3 rows and 1, 2, 3, 4. And it has 4 columns. Okay. So the array which has rows and column means in the form of table, it is called 2D array. Okay. Now you have to find an element in this. So how can you do this? यार सिंपल लीनियर सर्च आती है उसको लगा देंगे, बट यहाँ पे 2 एरे हैं तो एक क्या करेगा, एक रो के लिए होगा, दूसरा किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, कॉलम्स के लिए. यार अगर तुम लोगों को 2 नेस्टेड लूप यूज करते नहीं आते हैं, सो आई वुड सजेस्ट जाओ मयंक का पैटर्न वाला वीडियो देखो. यू विल बी एबल टू यूज नेस्टेड लूप वेरी वेल आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो. ओके, सो गो एंड ट्राई दैट. ठीक है, चलो. सो अब सीधे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि आई गेस तुम लोग को समझ में आ गया हो कैसे करना है. कैसे करेंगे, चलो. तो सिंपल है, एक दो लूप्स लेते हैं. ठीक है, जैसे पहला वाला सॉल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. एक टू लूप कहां से कहां तक चलेगा, जीरो मैट्रिक्स डॉट लेंथ. मैट्रिक्स डॉट लेंथ क्यों लिया मैंने, याद रखना जब भी मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिखते हो, सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज. इट विल ऑलवेज गिव यू द नंबर ऑफ रोज विद इन 2D array. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन योर हेड. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ दूसरा लूप भी मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा एंड टिल वेयर आई विल गो. नाउ यार मेरे को क्या करना है, ये दिस इज द फर्स्ट रो एंड आई हैव टू ट्रैवर्स इन ऑल द एलिमेंट इन दिस फर्स्ट रो. सो इस रो का लेंथ कितना है ये मेरे को पता करना पड़ेगा ना. सो अगर बाहर वाला लूप जो है, अगर ये I1 I2 I3 है, तो I1 की लेंथ कितनी है ये पता करना पड़ेगा ना. राइट राइट राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मैट्रिक्स I डॉट लेंथ. ओके, गॉट इट, कीप इट इन दिस हैंड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या करूंगा, सिंपल, इफ टारगेट मैट्रिक्स डॉट आई मींस आई के जेथ इंडेक्स पर, मैट्रिक्स के आई के जेथ इंडेक्स पर मेरा अगर टारगेट प्रेजेंट है, तो सिंपली सिंपली व्हाट जस्ट रिटर्न इट. व्हाट जस्ट रिटर्न इट. इफ नहीं है, सो भाई एट द एंड फॉल्स प्रेजेंट कर दे. ठीक है, गॉट इट. दिस वाज द वेरी सिंपल सॉल्यूशन. आई होप यू ऑल गेट इट and there's no need a lot for to explain all these things, right? Now let's discuss another approach which is very important. Now just look at the question once more. If you will look at the example, right, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20, these all are in the increasing order. Each row is in increasing order, each column is in increasing order. Look, 1, 10, 23, 3, 11, 30, 5, 16, 34. Each row and column is in increasing order, in increasing order. So yeah, don't you think हमें इसका फायदा उठाना चाहिए? Why to solve this in big O of n square time complexity when we can reduce it by just taking advantage of the sorted array, right? I hope you all know when the array is sorted, we can use two kinds of algorithm. One is two pointer and another one is binary search. Here we will be using binary search. Why, Suraj? Why we will be using binary search in this? Because bro, we have to find for the element, we have to search for the element in this array, right? So that's why we will be using binary search in it. Okay, so I hope you get it. So now how we will do that? So yeah, if you guys know binary search, what we do, we have 1D array, one dimensional array. Suppose forget about rest thing. We have suppose 1, 3, 5, 7. This is the only thing 1D array has given to us. Now we have to find for the element 3.
So how you can apply the binary search in it? You will take one pointer over here, left pointer, another pointer will be here, which will be called right pointer, and then you will find mid. What will be the mid? 0 and 3. Though what will be the mid pointer? That will be on 1. Okay, so if mid equal to, if array mid equal to target, then simply return true. Okay, because here we have to return in the form of boolean, so we will simply return true. Okay, so this is what we do in 1D matrix. So यार सूरज, how we can do this in 2D matrix? यार look, अभी 2D array में what we have done, हमने हर एक रो के jth एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, हर एक रो के कॉलम के लिए हमने क्या किया था, इसमें चेक किया था कि प्रेजेंट है कि नहीं. तो क्या हम हर एक रो के लिए बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते? अरे बिल्कुल लगा सकते हैं. कैसे लगाओ? चलो आ जाओ बताता हूँ मैं सब. चलो कोड को इरेज करते हैं पहले तो. जाओ 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 जाओ. चलो कमान कमान कमान, जल्दी 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 जल्दी. अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. कैसे? तो सिंपली यार बाइनरी सर्च का फंक्शन तुम लोग को पता है कि कैसे यूज करता है. ठीक है, कैसे होती है बाइनरी सर्च यूज. चलो लगाते हैं. तो मैंने एक फंक्शन बनाया बाइनरी सर्च का, इंट रो. ठीक है, रो क्यों ले रहा हूं मैं? सिर्फ क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक रो की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया, रो बस मेंशन किया वहां पे. दूसरा, now we have to find the target, so that's why I have initialized one more variable. I have initialized one more parameter named as target. Okay, अब क्या करेंगे? We simply do two things. कैसी होती है बाइनरी सर्च? सिंपल बाइनरी सर्च लगाओ. int left equal to 0 and row equal to row dot length आएगा. ठीक है, कैसे? इस रो का लेंथ we have to find and we have to find the element within this row. That's why I have written something like that. Okay, now if अब क्या करते हैं? मिड भी फाइंड करते हैं. वाइल लूप लगाएंगे. कहां से कहां तक? वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, मींस जब तक वो पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते, जब तक छोटे हैं और इक्वल हैं, जब तक ऐसे हैं. ठीक है, कैमरे में देखो, जब तक ऐसे हैं, क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक वो क्या करेंगे? लूप चलता रहेगा. जैसे ही क्रॉस हुआ, लूप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. अब क्या किया मैंने? यहाँ पे मिड पॉइंटर को इनिशियलाइज किया. आई हैव इनिशियलाइज्ड द मिड पॉइंटर and left plus right divided by 2, it will simply give me midpoint. now simply यार चेक करते हैं जैसे बाइनरी सर्च में, if रो के मिड पे अगर मेरा वैल्यू प्रेजेंट है, रिटर्न ट्रू. if not, so रिटर्न फॉल्स. नहीं, आगे चेक करना पड़ता है ना एरे को छोड़ के. सपोज we are in this row. ठीक है, अब एलिमेंट आया 11. अब इसमें क्या है कि भाई मेरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे मेरा आएगा इंडेक्स, यहाँ पे. अब नाउ माय एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देयर, मींस मेरा टारगेट एलिमेंट है 3, बट इट इज नॉट प्रेजेंट हियर. सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस? सोचो. अब पॉसिबिलिटी है ना. अब देखो, एरे सॉर्टेड है तो लेफ्ट साइड में ही हमेशा छोटे एलिमेंट मिलेंगे. सो आई हैव टू मूव माय मिड पॉइंटर टू द लेफ्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई लुक हियर आई हैव डन समथिंग लाइक if रो मिड इज लेस देन टारगेट, मतलब रो का मिड टारगेट से छोटा है, देन भाई क्या करो? हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, उसको इंक्रीज कर दो. ठीक है, और अगर मिड जो है मेरा बड़ा है मेरे टारगेट से, सो ब्रो जो मेरा राइट पॉइंट है उसको यहाँ पे ले आओ. मेरा राइट पॉइंट है जो यहाँ था पहले, अब उसको यहाँ पे ले आओ, मिड पे ले आओ, एंड वी विल फाइंड दैट हियर. ओके, ओके. सो आफ्टर दैट भाई, अगर इसके बाद भी अगर तेरे को एलिमेंट नहीं मिला, सो मींस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, सो वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स. ओके, नाउ अब इस मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा. कैसे करोगे? चलो कॉल करते हैं. सो आई हैव इनिशियलाइज समथिंग लाइक मैट्रिक्स लेंथ. क्या किया मैंने? मैट्रिक्स की लेंथ को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, m इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ. अब मैट्रिक्स डॉट लेंथ क्या देता है आपको? दैट विल ऑलवेज गिव यू द लेंथ ऑफ द, it will not give you the length, bro. I have told you, it will give you the number of rows. It will give you the number of rows within the 2D array. Okay, एंड हमें हर एक रो के लिए फाइंड करना था बाइनरी सर्च, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? लूप को लगा रहा हूँ. कहाँ से कहाँ तक चलेगा? लूप चलेगा 0 से लेके m तक लूप चलेगा. ठीक है, और हर बार क्या करेगा? हर एक रो के लिए दैट विल फाइंड द, that will call the binary search
फॉर ईच रो के लिए इट विल कॉल द बाइनरी सर्च। और अगर इसको मिल जाता है, अगर बाइनरी सर्च यहां से आंसर रिटर्न ट्रू करता है, सो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। आई होप यू गेट इट, फील ले पा रहे हो, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, सिंपल लॉजिक सोचो बस, हर एक रो के लिए मैंने बाइनरी सर्च लगा दी। बाइनरी सर्च का सिंपल सा फंक्शन होता है विच आई हैव जस्ट रिटन हियर, वैसे ही का वैसा, सिर्फ यहाँ पे हमें बूलियन था तो मेरे को रिटर्न फॉल्स या ट्रू कराना पड़ा। सिंपल मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च को कॉल कर दिया। अब हर एक रो के लिए करना था, दैट्स व्हाई आई हैव फॉर लूप, बस इतनी सी बात है। और अगर बाइनरी सर्च का आंसर ट्रू आता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर ट्रू नहीं होता तो भाई फॉल्स तो हम लास्ट में रिटर्न कर ही देंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू गॉट द फील ऑफ इट। और अभी भी समझ में नहीं आया, सो ब्रो प्लीज गो टू माय GitHub repository which is in the description below, check that out, you will see the approaches, naive, brute, or what we say optimal pattern, every approach you will see there, its explanation, its dry run, what is the use of that particular problem that you are solving right now in the real life. You will get all those things. So go and check out that repository. This is the best which you have never came across, right? So go and try. And if there's any doubt, please do let me know. We are always there to help you out. Okay. See you. Bye bye. अच्छा इस कोड को रन तो करके देख लो, चलो पेस्ट कॉपी को। What has happened? Chalo, let's try to run the code. Oh man, my screen is not working. Wait a second. Submit कर देते हैं. Okay, so it got submitted successfully. Okay, so now try this question at your own. 2 से 3 बार ट्राई करना, बहुत अच्छा लॉजिक है, कुछ नया सीखने को